हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स और उसमें हमने मेनली पढ़ा था क्यूबॉइड, ट्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कॉन एंड स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। और हमने डिस्कस किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। लेट्स प्रोसीड सेम टॉपिक। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक हमारा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। कल हमने इसमें फार्मूले डिस्कस किए थे और हमने डेरिवेशन किया था फॉर्मूले इसका फर्स्ट टर्म का। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 cubes of volume 64 cubic centimeter each are joined end to end to form a cuboid. Then we have to find volume surface area of the resulting cuboid. Resulting cuboid का हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबॉइड इट इज 1 cube with as its front piece and it is of another same as इसका भी इसका हमारे पास a है। Then what is its breadth? इसकी breadth क्या है हमारे पास a and height is also a because it is a cube, तो a cube है। तो जो हमारे पास क्यूबॉइड बना, क्यूबॉइड में ये क्या होंगे हमारे पास लेंथ becomes 2a, it becomes breadth and it becomes height of cuboid। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया उसकी लेंथ breadth height क्या होंगी 2a, a and a। यहाँ पे हमारे पास गिवन है फर्स्ट व्हाट इज गिवन? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब दैट इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। 64 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एस क्यूब, ए क्यूब इज 64 एंड ए कम्स 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ जाता है 4 सेंटीमीटर। एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड? क्यूबॉइड की लेंथ हमारे पास क्या होगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास क्या होगी 4 सेंटीमीटर एंड हाइट विल बी equal to also 4 centimeter. Then we have to find surface area of cuboid, resulting cuboid. Surface area of cuboid. Surface area of cuboid. Surface area इसमें वर्ड यूज किया means you have to find total surface area. अगर किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया find surface area of the solid, तो means we have to find its total surface area. तो total surface area क्या होगा 2 into LP plus BH plus LH। LBH हमारे पास है, it becomes 2 into length into breadth, 8 into 4, that becomes 32 plus breadth into height 4 into 4, that becomes 16 plus L into H 8 into 4, that becomes 32, 32 plus 32 64 plus 16, it becomes 80, 80 into 2, that means 160 centimeter square. It is surface area of the resulting cuboid. Now let's say next. Our next question is a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a cone, and diameter and height of a cylindrical part are 4 meter and 2.1 meter respectively, and slant height of cone is 2.8 meter. Then we have to find the area of canvas required for the tent and cost of canvas at the rate of rupees 500 per meter square. So figure जो होगी हमारी वो क्या होगी? It is tent in the shape of cylinder and top is conical. इसका टॉप क्या है हमारे पास conical. It is combination of two figures. दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन होगा, one is cylinder and one is cone. यहाँ पे जो रेडाई है वो both cone and cylinder that is same and diameter is given. Diameter it is 2r, that is 4 meter. Then r is 2 meter. And height of cylindrical part it is given 2.1 meter and slant height of conical part that is 2.8 meter. यहाँ पे हमारे पास it is R, it is H and it is also R and it is L. We have to find area of canvas. Area of canvas क्या होगा हमारे पास? Area of canvas that will be equal to जो कपड़ा लगा है कैनवस लगा वो किसमें लगा है? लेटरल पार्ट ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल पार्ट ऑफ कॉन। लेटरल पार्ट ऑफ कॉन में लगा है तो वो क्या होगा हमारे पास? लेटरल पार्ट ऑफ सिलेंडर 2 pi r प्लस लेटरल पार्ट ऑफ कॉन इज pi r। If you take pi r common, it remains 2h plus l, and it is pi. R is radius is 2. Radius क्या थी हमारे पास 2, and height of cylindrical part that is 2.1. 2.1 into 2 that becomes 4.2 plus slant height 2.8. If we take pi, अगर हम pi को लेते हैं 22/7 into 2
into 4.2 plus 2.8 that becomes 7. 7 से 7 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, that is 44 meter square. It comes area of canvas required to make the tent. And what will be the cost of the canvas? Cost of canvas. जो canvas की cost है, it is given 1 meter square cost rupees 500, then 44 meter square cost rupees 44 multiplied 500. It is rupees 0.002 rupees 22,000 total cost of canvas required to make the tent. Next question is, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter and base radius is 3.5 centimeter, then find total surface area of the article. एक वुडन आर्टिकल है, उसमें क्या किया गया है, सॉलिड वुडन आर्टिकल है, स्कूप आउट कर लिए क्या हेमिस्फीयर्स फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों एंड से हेमिस्फीयर्स स्कूप आउट किए गए हैं. तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग आर्टिकल. रिजल्टिंग जो आर्टिकल है उसका टोटल सरफेस एरिया इसमें पूछा है. लेट्स से इट इज अ सिलेंडर, वुडन सिलेंडर. टोटल हाइट दे रखी है, इसकी हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस एंड टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर. अगर हम इसमें से स्कूप आउट करेंगे हेमिस्फीयर तो जो फिगर हमारे पास ऑब्टेन होगी इस प्रकार से लगेगी. नीचे भी एक गड्ढा है और ऊपर भी एक गड्ढा है. तो हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है. रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ बोथ दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. सिलेंडर की भी और हेमिस्फीयर, बोथ हेमिस्फीयर्स आर आइडेंटिकल क्योंकि दोनों के डायमीटर्स क्या है यहाँ पे सेम हमारे पास. तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड, सरफेस एरिया व्हाट इट बिकम्स. अब यहाँ पे देखिए सिलेंडर का जो लेटरल पार्ट है, कर्व पार्ट है, उससे का पूरा, उसमें कहीं पे भी कोई कट नहीं किया गया. तो सब कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई r प्लस दैट हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल बाउल, बाउल का इंटरनल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस दैट बाउल क्या बनेगा 2 पाई r स्क्वायर. तो दोनों का मिलकर क्या बन गया हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर. 2 पाई r कॉमन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है h प्लस 2r. नाउ पुट वैल्यूज 2 पाई इंटू r, r इज 3.5 इंटू h, h is 10 plus 2r, double of 3.5 that is 7. It is 5 into upon 7 into 3.5 into 2 that is 7 into 17. 7 से 7 to cancel. 22 multiplied 17 it becomes 17 to the 34 and 17 to the 34 plus 3 37. And this total surface area या surface area of resulting solid is 374 centimeter square. Let's see next question. कह रहे कि solid wooden toy is in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere. If the radius of hemisphere is 4.2 and total height of the toy is 10.2, then volume of the wooden toy. यहाँ पे कॉम्बिनेशन है किसका, यहाँ पे कॉम्बिनेशन था हमारे पास सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉन एंड हेमिस्फीयर. ए टॉय इज मेड बाय टू सॉलिड्स, वन इज कॉन एंड वन इज हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए कॉन, एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर क्या रखा गया है, कॉन रखा गया. एंड रेडियस ऑफ बोथ, दोनों की जो त्रिज्या है वो क्या है हमारे पास 4.2. हेमिस्फेरिकल पार्ट, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2 एंड टोटल हाइट इज 10.2. रेडियस क्या है हेमिस्फीयर की 4.2, देन रेडियस ऑफ दिस कॉनिकल पार्ट इज आल्सो 4.2. कॉनिकल पार्ट की जो हमारे पास रेडियस होगी वो क्या होगी 4.2 होगी. एंड टोटल हाइट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की टोटल हाइट दैट इज 10.2. देन व्हाट इज हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट की हाइट मेरे पास क्या बच गई h. 10.2 माइनस 4.2. हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी किसकी इक्वल होगी, रेडियस की इक्वल होगी. देन व्हाट दिस रिमेन्स h, दैट रिमेन्स 6 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड volume or total surface area. We have to find volume of this wooden toy. Then what will be volume of toy? Volume of this toy का क्या होगा हमारे पास, volume will be volume of hemisphere plus volume of cone. Hemisphere का volume हमारे पास क्या होता है 2/3 pi r cube and volume of cone is 1/3 pi r square h. We have 1/3 pi r square common. What remains?
here it remains 2r plus h. Now put values. अब हमें क्या करना है, values put करनी है 1/3 pi r square. Radius is 4.2. 4.2 square क्या होगा, multiply 4.2 by 4.2 becomes 84 multiplied 168 4 6 7 1. It becomes 17.64. 17.64 into 2r. 4.2 into 2, 8.4 plus h is here 6, and that becomes 1/3 pi, take 22/7 into 17.64 multiplied by 14.4. 7 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 17.64, क्योंकि 4.2 का स्क्वायर है, 4.2 मल्टीपल ऑफ 7 है हमारे पास, 3 भी कैंसिल हो जाएगा. तो लास्ट में आप क्या कीजिएगा, इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा और सोल्व कीजिएगा. दैट विल बी द आंसर. वही हमारा क्या होगा आंसर. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. A cylindrical container is filled with ice cream whose diameter is 12 centimeter and height is 15 centimeter. Whole ice cream is distributed to 10 children in equal cones having hemispherical toe. If the height of the conical portion is twice the diameter of the base. Conical portion की जो height है वो base का क्या है, डबल है diameter का. Find the diameter of the ice cream. Ice cream जो cone है उसका हमें diameter यहाँ पे निकालना है. तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इट इज फिल्ड विद आइसक्रीम, वो आइसक्रीम से भरा हुआ है. इट इज सिलेंड्रिकल कंटेनर filled with ice cream, and ice cream is emptied into cones with hemispherical tops. It is cylinder and it is cone in which ice cream is emptied with hemispherical top. जब हम आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम कोन खाते हैं तो उसकी शेप क्या बनती है, ऐसे ही बनती है कॉन, एंड ऊपर से क्या होता है इसमें हेमिस्फीयर. यहाँ पे जो दे रखा है डायमीटर, सपोज इट्स डायमीटर इज 2r, देन रेडियस विल बी r. रेडियस क्या होगी r, एंड इट सेज द टोटल हाइट ऑफ आइसक्रीम कोन. जो आइसक्रीम कोन की टोटल हाइट है, इफ द हाइट ऑफ द conical portion is twice the diameter. conical portion की हाइट diameter क्या है, twice है. diameter 2r है, तो हाइट हमारे पास h क्या बन गई, it becomes 4r, height of conical portion. और यहाँ पे जो सिलेंडर की रेडियस और हाइट दे रखे हैं, that are diameter is 12 and height is 15. इसका diameter 12 है, then radius suppose capital R, it is 6 centimeter, and height suppose capital H, it is 15 centimeter. And it says it is emptied by 10 cones. सिलेंडर में से कितने कोन भरे गए हैं, उससे के 10 भरे गए हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 10 सच सॉलिड्स. इन 10 सॉलिड्स के बराबर होगा. तो वॉल्यूम ऑफ 10 cones with hemisphere is equal to volume of cylinder. So volume of 10 cones with hemispherical top is equal to volume of cylindrical part. वो क्या होगा, cylindrical part का वॉल्यूम होगा. तो वॉल्यूम ऑफ 10 cone का वॉल्यूम क्या होगा. This cone is combination of two things, cone plus hemispherical top. इसका वॉल्यूम बनेगा वॉल्यूम ऑफ cone 1/3 pi r square h plus 2/3 pi r cube. This hemisphere is equal to volume of cylinder pi r square, capital R and capital H, pi r square h. Here 1/3 pi r square common. What remains, h plus 2r, that is equal to pi r square h. pi से pi हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. 1/3 r square into h is equal to क्या है हमारे पास, h is 4r, and 4r plus 2r it becomes 6r. It becomes 6r, that is equal to r square. 6 square, that is 36, and h is 50. इसको सिंप्लीफाई करना है, किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से, और 2 से कैंसिल हो जाएगा करने पे 18. r square into r cube, that is equal to 15 into 18. 18 into 15 को हम क्या लिख सकते हैं, that becomes हमारे पास क्या बन जाएगा, 15 8 जा 120, and 15 1 जा 15 plus 12, that is 270. Then r is equal to cube root 270. And cube root 270, we can write cube root
27 into 10, and that becomes cube root 3 cube into 10, 3 cube into 10, and that gives after simplification 3 cube root 10. And what is diameter? Diameter क्या होगा हमारे पास of this conical portion? That will be 3 into 2, 6 cube root 10 centimeter. यही हमें क्या करना था? फाइंड आउट करना था. Now let's see next question. Next question हमारे पास cylindrical vessel of diameter 14 and height 42 is fixed symmetrically inside a similar vessel of diameter 16 and height 42, same height. Then total space between the two vessels is filled with dust. How many cubic centimeter of dust will be required? कितने cubic centimeter dust कह रहे हैं यहाँ पे required होगी. दो सिलेंडर हैं यहाँ पे हमारे पास, दोनों की हाइट सेम है पर डायमीटर्स आर डिफरेंट. डायमीटर क्या हमारे पास डिफरेंट है, तो कह रहा है इन बिटवीन जो स्पेस होगा उसमें डस्ट फिलअप की गई है. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द डस्ट? डस्ट का वॉल्यूम क्या होगा वो हमें बताना है. दैट विल बी इन क्यूबिक सेंटीमीटर. कितना क्यूबिक सेंटीमीटर डस्ट हम इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं. कह रहे हैं कि एक बड़ा सिलेंडर है, लार्जेस्ट सिलेंडर, height is 42. Inside it, a small cylinder is put. इसके अंदर of same height का एक छोटा सिलेंडर इसके अंदर पुट किया गया है. तो जो फिगर हमारे पास होगी that will be like this. इस प्रकार से होगी. दोनों के अंदर जो स्पेस रहेगा दोनों से. लार्जर का डायमीटर हमारे पास कितना है 16 एंड स्मॉलर का डायमीटर हमारे पास कितना है 14. बोथ आर इन सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ बोथ दैट इज h. दोनों की हाइट क्या है हमारे पास h है. तो जो स्पेस रहेगा, स्पेस का वॉल्यूम बताना है. स्पेस का वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा आप देख पा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर. तो रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर लिखेंगे आप अलग से स्टेटमेंट देने. तो रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर कैपिटल R दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर की जो रेडियस होगी हमारे पास दैट विल बी 7 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ 14. रेडियस ऑफ लार्जर that is 8 centimeter and radius of smaller that is 7 centimeter and height of both I have taken capital S that is 42 centimeter. वो क्या ले लिया हमने 42 centimeter. तो जो वैकेंट पार्ट है या इस वैकेंट पार्ट में जो सैंड आएगी वॉल्यूम ऑफ सैंड हमें निकालना है. वॉल्यूम ऑफ सैंड दैट विल बी इक्वल टू सैंड का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास क्या होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर. या वी कैन से वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा जो एक्सिस का वॉल्यूम होगा. तो क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच. पाई एच कॉमन दैट बिकम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. यही हमारे पास क्या होगा सेंड का वॉल्यूम होगा. पाई हियर रिमेन्स पाई देन एच इज 42 आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर 8 square 64 minus 49. 64 minus 49. Pi if I take 22 upon 7 into 42 and 64 minus 49 that is 15. 7 6 jump. Then that becomes 22 into 15 6 and 90 cubic centimeters and required to fill this vacant part. जो दोनों सिलेंडर के बीच में वैकेंट पार्ट है उसको फिल अप करने के लिए कितने हमें क्यूबिक सेंटीमीटर सैंड चाहिए मल्टीप्लाई 22 बाई 90 को 22 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है सुशांत है जो वेसल ऑफ द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन ओपन एट द टॉप. इन्वर्टेड कोन वेसल है ऊपर से क्या वो खुला हुआ है एंड फिल्ड विद वाटर और पानी से भरा हुआ है और 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप इज 2.5 सेंटीमीटर एंड इज फुल ऑफ वाटर. Metallic spheres, each of diameter 0.5 centimeter, are put in the vessel. Vessel के अंदर पुट की गई हैं जिनका डायमीटर दिया हुआ है 0.5. तो कह रहा है कि 2/5 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. जैसे ही उसके अंदर कुछ डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा. पानी बाहर कितना निकला टोटल वेसल का 2/5 बाहर निकला. फाइंड हाउ मेनी बॉल्स वर पुट इन द वेसल. वेसल के अंदर कह रहा है कितनी बॉल्स पुट की गई थी वो हमें बताना. अच्छा क्वेश्चन है ये भी. इन्वर्टेड कोन शेप का एक वेसल हमारे पास. इट इज वेसल एंड फुल ऑफ वाटर पानी से भरा हुआ है.
तो कह रहे हैं इसके अंदर स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स डाले हमने कुछ, इसके अंदर बॉल्स ड्रॉप करेंगे, कितने बॉल्स डाले नहीं पता, लेकिन पानी से भरा हुआ है, कोई भी बैक्टीरिया हो, कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ग्लास लो उसके अंदर कुछ डालो, जितना उसके अंदर डालेंगे, जो हमने एक चीज डालनी, चाहे वो स्फेरिकल है चाहे कुछ भी है, उसके वॉल्यूम के बराबर पानी क्या होगा, बाहर आएगा, ओवरफ्लो होगा। ये कह रहे हैं कि पानी ओवरफ्लो होगा। कितना पानी ओवरफ्लो होगा, स्पीड डालते 2/5 वाटर ओवरफ्लो हुआ, तो 2/5 वाटर ओवरफ्लो हुआ, तो मतलब स्पेस का वॉल्यूम क्या था, 2/5 वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल स्पीयर्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्पीयर्स दैट इज इक्वल टू 2/5 वॉल्यूम ऑफ कौन, वो कौन के वॉल्यूम का कितना होगा, 2/5 होगा। तो यहाँ पे कौन की डायमेंशन हमें दे रखे हैं, कौन की डायमेंशन है हमारे पास, हाइट 11 एंड रेडियस ऑफ टॉप इज 2.5। कौन की जो रेडियस है, कौन की रेडियस हमारे पास है, कैपिटल आर दैट इज 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट सपोज कैपिटल एस दैट इज 11 सेंटीमीटर एंड ईच स्फीयर ऑफ रेडियस, हर स्फीयर की रेडियस हमारे पास क्या है, 0.5 डायमीटर, 0.5 मीन्स 1/2 डायमीटर है, 0.5 means 1/2. तो half of 1/2 that becomes 1/4. तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या बन जाएगी, 1/4 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.5 is equal to 1/10 and half of 1/2 is 1/4. 1/2 का डायमीटर था, उसका भी आपने रेडियस हमारे पास क्या बनेगी, 1/4. तो वो लेट नंबर ऑफ स्फीयर्स सपोज दैट इज इक्वल टू x, वो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ x स्फीयर्स, x into वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 pi r cube that is equal to 2/5 वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 pi कैपिटल R स्क्वायर है। अब 1/3 pi से 1/3 pi दोनों साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, x into 4 into r cube, 1/4 cube that becomes 1/64 that is equal to 2/5 into r square, 2.5 स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 6.25, और अगर मैं डेसिमल को रिमूव कर दूं then that gives upon 100 और into h as is 11। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितने पे कैंसिल होगा, 25 से कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 100 एंड 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 पे, तो इससे 2 पे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 4 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 16 पे। Then x comes 16 multiplied 11 into 5, 55/2. It is 8. Then x is equal to 440. तो कितने जो स्फीयर्स थी इसके अंदर ड्रॉप किए गए थे वेसल के अंदर, that's 440. So students, we will stop here. In our next lecture, we will discuss more questions related to surface area and volumes of frustum of cones. And please send problems if occurs. अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो भेजिएगा, हम इन प्रॉब्लम्स पे भी एक लेक्चर लेंगे और एक हमारा पीरियड होगा। देन ओके, थैंक यू।